کو سزائیں ملی اور وہ جو سارا بنا. میں چاہوں گا کہ سننے والوں کو ذرا یہ لوگوں کا ذرا فریش کر دیں. یہ پاناما میں جو نواز شریف صاحب کو سزائیں ملی, ان سزاؤں پر, اس پورے پروسیس پر, کہ آپ کی بہت زیادہ لکھا بھی ہے, آپ نے بڑے پروگرام کیے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو اگر اس پر کچھ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہوا کیا تھا پاناموں کے سزاؤں والا. دیکھیے ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کو پاناما کیس میں جبکہ ان کا براہ راست نام بھی نہیں تھا, اس کو انڈکٹ کیا گیا, اور اس کو انڈکٹ کرنے کے بعد اس وقت کی جو آپ کی عدلیہ تھا, اس میں جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, وہ ٹیم جس میں بعد میں آنے والے میں جسٹس آصف سعید کوسا اور پھر جسٹس عظمت اور آج کل اعجاز الحسن بھی ہیں, اور اعجاز خان, پتہ نہیں اعجاز الحسن, ایک اعجاز کوئی اور بھی صاحب تھے, 5 جج تھے. تو صرف وہی نہیں بلکہ اس وقت تو ایک اسٹیبلشمنٹ پوری, یعنی جس میں عدلیہ بھی تھی, کچھ لوگ فوج کے بھی تھے, کچھ لوگ بیوروکریسی کے بھی تھے. انہوں نے عمران خان کو انڈکٹ کرنا تھا اور میاں نواز شریف صاحب کو, حالانکہ 1 سال رہ گیا تھا, کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن اتنی جلدی تھی ان لوگوں کو کہ انہوں نے ان کو ایک پورا پروگرام بنانا پڑا, اور پاناما کیس کو بیس بنا کر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا. اور اس میں ان کو سپریم کورٹ کے 2-3 باتیں ایسی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے, ان پریزیڈنٹ, ان لافل, ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا گیا. مثلا ایک طرف آپ نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تاحیات نااہلی کر دی 62(1)(f) میں, حالانکہ آپ جو ہیں وہ عدالت نہیں ہے کہ جو آپ اس طرح کی سزائیں دیں. یہ تو اگر نچلی جگہ سے سزا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ تک آئے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اس طرح کی آپ نے انٹرفیئر کی ہوئی تھی. اور دوسرا, کانسٹیٹیوشن میں 62(1)(f) کی کوئی سزا 1 دن کا بھی مینشن نہیں ہے. آپ نے تاحیات نااہلی کی تشریح کر دی اور اس کے بعد ان کو تاحیات نائل کر دیا. دوسری طرف آپ نے العزیزیہ, فلیگ شپ اور ایون فیلڈ 3 کیسز ان کے بنوا دیے, اور باضابطہ انسٹرکشن جاری کی کہ نیب کو کہ آپ یہ 3 کیسز بنائیں, اور اس پہ ایک مانیٹر جج بھی رکھ دیا گیا کہ وہ مانیٹر کرتا رہے گا. تو اب کہانی تو بہت بڑی ہے, پروگرام اس پہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مختصر یہ کہ ان تینوں جو ان کے اوپر جو ان کو سزا دی گئی, اس میں جو میاں نواز شریف صاحب پر ایلیگیشن تھی, نیب اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہی, لیکن اس کے باوجود کہ وہ فیکٹ اینڈ فگر نہیں دے سکے اور ایویڈنس نہیں دے سکے, جس کا بعد میں کیلبری فون کا بھی آیا اور ان کے آپ کے منی ٹریل کا بھی آیا اور دوسری تمام چیزوں کا آیا, اور اس چیز سے منسلک کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, یہ سب چیزیں ثابت نہیں کر سکی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلیگ شپ پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا ان کو ریلیف مل گیا. اچھا, آئین تو یہ کہتا ہے کہ سیم کیسز پہ آپ, نیب کا قانون بھی کہتا ہے 9(5)(a), اور دوسرا پاکستان آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ سیم کیس پہ 3 کیسز آپ نہیں بنا سکتے. تو آپ نے 3 کیسز بنا دیے. ایک ہی چیز پہ 3 سزا بھی نہیں ہو سکتی, 3 پروسیکیوشن بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ حیران کن عمل تھا جو کہ ہوا, اور وہ شاید یہ وجہ تھی کہ یہ ایک پلان تھا جو امپلیمنٹ کرنا تھا, اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا جو انہوں نے کیا. چنانچہ ایک چیز پہ جب ریلیف مل گئی, اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایک ہی جیسی چیز پہ 3 سزائیں نہیں ہوتی, جب ایک پہ مل گئی تو 2 پہ بھی دے دینا چاہیے تھا, لیکن اوپر سے نیچے تک ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کے جج کو, چیف جسٹس کو اور پوری بینچ کو کون منہ دے سکتا ہے اس وقت, جبکہ اتنا پیچھے سے سپورٹ بھی تھا, اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی اوور آل. تو میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, 10 سال ہوئی, ان کی بیٹی کو ہوئی, داماد کو ہوا, فلاں ہوا, اور پھر تاحیات نااہلی ہو گئی. اور ہم نے اس پہ پروگرام کیا, اور اس پروگرام میں ہم نے یہ بتایا کہ تاحیات نااہلی کسی صورت نہیں بنتی ہے, وہ
अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। उसके बाद एक बेटे से जो है ना वो ना लेने पर, जिसका कोई जिक्र नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, उसको पकड़ कर आपने जो है उसको सज़ा दे दी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल, और दुनिया में ऐसा कहीं सिलसिला नहीं था। इसका मतलब ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को फारिग करना था, उनकी हुकूमत को टैपल करना था और इमरान खान को जल्द से जल्द लाना था। हालांकि 1 साल कि में वो आए अपना शाहिद खाकान अब्बासी, अगर मियां नवाज शरीफ साहब 1 साल और रह जाते और फिर इलेक्शन में सिलसिला होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। अगर वहाँ पे आप कोई ऐसी हरकत करके मैनिपुलेशन करके इलेक्शन जितवा देते इमरान को तो समझ में आता, जैसे 2018 में हुआ भी। लेकिन 1 साल पहले ये जो अमल हुआ है, इससे लगता ये है कि उस वक्त ये जो अदलिया थी ये खून की प्यासे हुई थी मियाँ साहब की, और इमरान उनके सर पे इतना बड़ा लाडला था कि वो उसके एक आंसू को गिरने नहीं देना चाह रहे थे। तो चुनांचे 1 साल भी नहीं ठहरे, 1 साल भी नहीं था, तकरीबन कुछ महीने था। तो इतना तेजी से ये काम हुआ जिसमें दुनिया ने देखा कि इस तरह का पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी को बहुत नुकसान पहुंचा। इसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, ओहदे सब पामाल हुए, और ये सूरत हाल हो गया। आपने फिर बाद में देखा मरीम नवाज साहिबा को हमने उस पर बड़े प्रोग्राम्स हमने किए, और उसके बाद उसका नतीजा हुआ उसी डायरेक्शन पे जब केस गया अदालत में, तो माशाअल्लाह जो जिन नुकात को हमने उठाया था और जिंदा किया था जबकि सब सो चुके थे, तो माशाअल्लाह उस नुकात को जो एज ए तालिब इल्म हमने उठाया, प्रोग्राम्स किए, और उसमें जनाब इरफान कादिर जैसा बेहतरीन का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी आया और उसने भी तमाम चीज़ें सामने रखी। तो उस वक्त हमने किया। तो मरीम नवाज साहिबा की जब अपील चली गई तो उनको रिलीफ मिल गया, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ बाहर थे। मियाँ नवाज शरीफ भी जब आएंगे, कम अज़ कम इवेंट फील्ड में जो ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका है, मियाँ नवाज शरीफ अपील करेंगे, और उनको ये मौका दिया गया है कि जब भी वो आए और वो अपील करेंगे तो फिर उस वक्त केस सुना जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस केस में भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। 62(1)(f) के हवाले से क्वेश्चन मार्क है, और अल अजीज़िया के हवाले से क्वेश्चन। बात ये नहीं है कि अगर आप ये पूछेंगे कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा सही है, तो मैं कहूँगा सर 2000% गलत सज़ा दी गई है। लेकिन आपने 189 आइन का आर्टिकल है या 190 है कि सज़ा गलत हो या सही हो, वो इम्प्लीमेंट होगी, और सुप्रीम कोर्ट की सज़ा का ख़त्म करने का एक तरीक़ेकार होगा। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनके लॉयर जो हैं, जो भी उनके लॉयर हैं, उन्होंने उनको कुछ मशवरा दिया है। लेकिन हम जैसे तालिब इल्म जो क्वेश्चन रखते हैं, कोई 2 केस हुआ है, आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फ़ैसला और रिव्यू एंड जजमेंट का फ़ैसला। उसके बाद मुझ समेत कुछ अहम तरीन एज ए तालिब इल्म में और कुछ अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ये कहते हैं कि इनके तायात नाइली के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनेगा। हालांकि गलत दिया गया है, हालांकि टोटली गलत है, लेकिन बहरहाल रास्ता कानून से ही निकालना है, आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो इसकी जब आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। बाकी रही उनका कि वो एब्सकॉन्डर के तौर पर उनको डील किया जाएगा, तो नहीं आए वो, तो उसकी सॉलिड जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी उनको। तो वरना ये है कि अमूमन जब कोई एब्सकॉन्डर होता है तो, और इतना बड़ा हो, और फिर देख भी रहे हैं उनकी मूवमेंट को, तो अदालतें फिर प्रोटेक्टिव बेल देने में हिचकिचाती हैं। तो इसलिए ये सारे क्योस बन रहे हैं कि आया क्या होगा। और नाअहली के हवाले से आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बाकी बताऊंगा कि क्यों क्वेश्चन मार्क है, जो कि इनके लॉयर वो नहीं बता रहे। हमने उस वक्त भी जब इनके लॉयर ने वो हकाइक नहीं बताए, यही वो लॉयर थे मियाँ नवाज शरीफ और मरियम को, जो मैंने अपने व्लॉग के जरिए और डॉक्टर ये इरफान कादिर ने अपने प्रोग्रामों के जरिए बताए, जिसका फायदा हुआ। और उस वक्त नवाज शरीफ की पूरी लीगल टीम जो थी वो फेल हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, हमें याद है मरियम नवाज ने आपका पूरे का पूरा व्लॉग जो ट्वीट किया था, उसका पूरे का पूरा। प्लीज जरा इसको कंटिन्यू फरमा दें, कहाँ पर क्या, तो वो अच्छा है, क्योंकि आप इसी रो में अगर बता दें जो। देखिए, तायात नाअहली के हवाले से 2 वर्जन आ रहे हैं।
जो PMLN का वर्जन है वो भी रख देता हूँ और जो जी, दूसरा प्लीज। वर्जन है वो भी रख देता हूँ। बाकी तो फैसला अल्लाह ताला जानता है कि क्या सूरत हाल है। PMLN ये कहती है कि तायात नाअहली के हवाले से एक एक्ट पास हुआ है और वो एक्ट इलेक्शन एक्ट 2000 आपके 17 है, जिसमें 62(1)F में जो तायात नाअहली थी उसको 5 साल कर दिया है उस एक्ट को। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल गुजार चुके हैं, तो अब वो इस ज़िम्मे में नहीं आते। ये है PMLN के वकला का वो। यहाँ पे 2 बातें और बता दूं, 62(1)F अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील में है और ये एक मुतनाज़ा कानून है। इसका मतलब है कल सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी और अगर ये कह देती है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो 62(1)F 5 साल किया गया है सिंपल मेजोरिटी से, ये गलत है या सही है, दोनों बातें कर सकती है, तो लफ्ज आता है मुतनाज़ा बिल, ठीक है ना, कानून, क्योंकि ऑलरेडी अपील गई हुई है जिसे सुना नहीं गया है, किसी वक्त भी अपील सुनी जा सकती है। ये उनका सॉलिड पॉइंट है जो उन्होंने इस पॉइंट लाए। हमारा पॉइंट ये है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है वो ये कहते हैं कि देखिए, एक तो जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को जो अपील का हक 184(3) के जरिए मिल सकता था रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले के जो फैसला आया उसमें बहुत अच्छा फैसला है। उसमें ये आया कि एक जज ने अपने इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, यानी चीफ जस्टिस के पास जो। दूसरा ये था कि 3 रुकनी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो फैसला करेंगे। इसमें एक और चीज़ भी अच्छी हुई कि 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया, लेकिन उनको नहीं दिया गया जिनका फैसला हो चुका है, यानी जहांगीर तरीन या मियां नवाज शरीफ। तो 184(3) के तहत इनके लॉयर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले के बाद अपील नहीं कर सकते, जो कि एक पहले भी रिव्यू उनका मुस्तरद हो चुका है, कानून में दूसरा रिव्यू नहीं है। अब आते हैं तीसरी तरफ कि इलेक्शन एक्ट आया एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये कहते हैं जो दूसरे लॉयर है कि देखें, आप PMLN वालों की तरफ से ये आता है कि आप कैसे कहते हैं कि जी इसको किस तरीके से फिर बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि वो ये कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई है वो सिंपल मेजॉरिटी से हुई है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से तसादुम है। अगर आपको रिलीफ लेना है तो फिर 62(1)F की तायात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, तशरीह कर चुकी है। जो तशरीह कर दिया तो वो एक कानून बन चुका है और वो अटैच हो गया है 62(1)F के साथ के वो तायात नाअहली है। अब इसको आपने 62(1)F की कॉन्स्टिट्यूशन जिस सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून बना दिया है उसके साथ फैसला दे दिया है, तो इसको अगर आपने हटाना है तो आप एक 2/3 मेजॉरिटी से आए और ये 62(1)F तायात नाअहली को 5 साल कर दें। इलेक्शन एक्ट 2017 जो किया गया है वो रिव्यू एंड जजमेंट के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब का केस और जहांगीर तरीन का पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हो गया है। पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन का मतलब है कि अब ये रीओपन नहीं हो सकता, और जब रीओपन नहीं हो सकता तो जो सज़ा उनकी 62(1)F की है वो बरकरार है, तायात नाअहली। 60 इलेक्शन एक्ट 2017 का जो फैसला है वो मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर असर नहीं होगा। किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है, वो 2 ही तरीका है। ये वर्जन जो कह रहा है, ये कहता है कि या तो पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से 62(1)F जो कि सुप्रीम कोर्ट कानून बना चुका है, ठीक है जी, उसमें तायात नाअहली जोड़ चुका है, उसको 2/3 मेजॉरिटी से उड़ा दे तो हो जाएगा। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिविजिट कर ले, खुद रिविजिट करे, खुद रिव्यू कर, बिल्कुल ठीक जी, रिविजिट करे और लार्जर बेंच बनाए और इसके अगेंस्ट फैसला दे दे तो हो सकता है। तो ये 2 वर्जन है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून